We'll begin with of aldehyde ketones and carboxylic acid. Now we'll switch over to another chapter of organic chemistry, that is amines. Okay. Now in case of amines, what do we mean by amines? What are amines? सबसे पहला क्वेश्चन, amines are nitrogen containing organic compound. Amines are nitrogen containing organic compound. Nitrogen containing organic compound which are found to be basic in nature. So we are talking about this new chapter, amines. Okay. So it is nitrogen containing. नाइट्रोजन कंटेनिंग, नॉर्मली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर आवाज बहुत कम आ रहा है। आवाज कम आ रहा है। अब आएगा बराबर, देखते हैं जरा। ऐसा बोल दिया करो मुझे। ओके जी। सो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड is what we call as amines, nitrogen containing organic compound. Organic compounds are known as amines, nitrogen containing, and they are found to be basic in nature. Basic in nature. अभी है ठीक है? Now I am audible. Hello. यस सर। Okay बेटा, चलो. So basic in nature, one aspect. They are obtained. They are obtained by replacing. They are obtained by replacing one or two or all the three hydrogen atoms of ammonia. Ammonia का फॉर्मूला, ammonia molecule by the same number of alkyl or aryl group. अल्काइल और अराइल ग्रुप. तो ये डेफिनेशन हो गई अमाइंस की. अमाइंस आर नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड found to be basic in nature. They are obtained by replacing one, two, or all the three hydrogen atoms of ammonia molecule by the same number of alkyl or aryl group. तो जैसे यहाँ देखते हैं, ये अमोनिया लिया हमने NH3, नाइट्रोजन सेंटर में. Here we have 3 hydrogen atom. करेक्ट है? ये यहाँ लगा देते हाइड्रोजन. ओके. नाउ रिप्लेस वन हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन और ऑल द 3 हाइड्रोजन by the same number of alkyl group और अराइल ग्रुप. तो अभी हम अल्काइल ग्रुप को ही कंसिडर करते हैं. रिप्लेस वन हाइड्रोजन, -H plus R. What we get is RnH2. इसको लिखेंगे RnH2. Replace now 2 hydrogen, minus twice H plus twice R. We get Rn, here RH. We write R2NH. And the third one, replace all the 3 hydrogen one by one. ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था, ये थर्ड. all the 3 hydrogen by the 3 aryl group. We get here R नाइट्रोजन सेंटर में, और उसके तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया. फॉर्मूला बना R3N. तो RnH2 is an amine, R2NH is an amine, R3N is an amine. All the three are amines
and they are obtained by replacing 1, 2 or all the 3 hydrogen of ammonia, है ना, ये अमोनिया मॉलिक्यूल है आपका, इसमें से by the same number of alkyl or aryl group. अब हमने alkyl group where R can be, यहाँ पर लिख सकते हैं where R equal to alkyl or aryl group. अराइल ग्रुप यानी हम AR से डिनोट करते हैं, अल्काइल ग्रुप R से यूजुअली करते हैं. यहाँ समझने के लिए R अभी हम क्या बोलेंगे, इट कुड बी एन अल्काइल ग्रुप और इट कुड बी एन अराइल ग्रुप. यहाँ मैं रेड कलर से एग्जाम्पल लिखता हूँ, RNH2 बोलेंगे, मुझे क्या फॉर्मूला बना दूँ, एक एग्जाम्पल CH3NH2. एक और एग्जाम्पल बोलेंगे C2H5NH2. करेक्ट. नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाँ, C3H7NH2. दैट मीन्स NH2 इज द ग्रुप, है ना, इज द अमाइन ग्रुप. नेक्स्ट एग्जाम्पल R2NH. R2NH, अब R 2 टाइम्स लेना है तो मैं CH3 2 टाइम्स लूंगा, CH3 2 टाइम्स NH, CH3 twice NH आ गया. Yes, sir. C2H5 twice NH, C3H7 twice NH. R3 में उसको 3 टाइम्स लेना है तो हम लिख सकेंगे CH3 3 टाइम्स N. ये हो गया थर्ड टाइप ऑफ अमाइन. Now what we know here, that this amines which we see as RNH2, R2NH and R3N, all these are basically amines. Before going to further classification, why amines are basic in nature, अब तीनों एग्जाम्पल आपके पास में है. एक है अमाइन RNH2, दूसरा है R2NH और थर्ड टाइप मिला आपको R3N. बेटा चलो, ये बेसिक नेचर क्यों होगा, ये आता है आपको, इसलिए हम पूछ रहे हैं आपसे. दिस इज नथिंग डिफिकल्ट, वेरी इजी. कैन एनीवन? यस, एनीवन help? Presence of alkyl group. No. कैसी बात कर रहे हैं, presence of alkyl group cannot be. What it could be? अनिरुद्ध, कैसे होगा बेटा ये? धनश्री मेश्राम, ये क्या दिख रहा है इसके आगे डॉट लगा हुआ? हाँ, कौन बोलेगा? गार्गी पनूरकर. Due to lone pair of electrons. यस, who is he? कौन बोल रहा है ये? किसने आंसर दिया? हेलो कपिल. सागर सर. सागर ने दिया है, क्या बात है सागर. लोन पेयर कहाँ है बेटा? लोन पेयर कहाँ रहेगी? ये नाइट्रोजन पे है ना, नाइट्रोजन कैरीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सागर, वेरी गुड, है ना. कपिल, आंसर आना चाहिए था बेटा. हाँ, तो नाइट्रोजन कैरीज lone pair of electron, and that's why all these three amines are basic in nature. जैसे हमने अभी पढ़ा था ना, why carboxylic acid is acidic in nature, because it gives free H plus ion. वैसा ही क्वेश्चन बनता है, what are amines, why amines are basic in nature and give classification of amines. तो आगे और पढ़ेंगे अभी इसको हम, लेकिन यहीं पर एक पहला फंडा अपना क्लियर होना चाहिए कि why amines are basic in nature, because it is an organic compound containing nitrogen, and that nitrogen containing compound is found to be basic in nature due to the presence of lone pair of electron on nitrogen atom. So this is the simple introduction of amines, definition of amines. Now
keeping all this in mind, amines are classified into three types. Into three types. What are they? Into three types, depending upon the number of alkyl or aryl group. हमको ज़्यादा अराइल में डिटेल में नहीं जाना है ना. अराइल को इंट्रोड्यूस करना है, उसमें समझ लेना है, लेकिन अल्काइल ज़्यादा डिस्कशन में है हमारे सिलेबस में. So coming to the classification of amines. Amines are classified into three types depending upon the number of alkyl or aryl group. So amines are classified. तो फर्स्ट टाइप है प्राइमरी अमाइन. प्राइमरी अमाइन कैसे डिनोट करना चाहिए प्राइमरी अमाइन को? 1 डिग्री अमाइन है ना, 1 डिग्री अमाइन. व्हाट हैपन्स इन 1 डिग्री अमाइन बोल सकते हैं आप? अभी जो हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ अमाइन लिखा है उसमें ये प्राइमरी अमाइन हो जाएगा. RNH2. यस, प्राइमरी अमाइन 1 डिग्री अमाइन RNH2. How to get RNH2? How to get RNH2? By replacing one hydrogen with alkyl group. From ammonia, है ना? Yes, From ammonia. Yes, by replacing, very good, by replacing one hydrogen atom of ammonia molecule by one alkyl group, we get a amine called as primary amine, which is identified by the presence of RNH2 group. So when we say primary amine, immediately we will write RNH2. और इसके एग्जाम्पल तो अभी में आपने बोले थे मुझे बहुत सारे, है ना? तो बुरनांक ने इतने सारे एग्जाम्पल बोला था, अभी बाकी लोग बोल दो इसके एग्जाम्पल. CH3 बोलिए जरा. CH3 NH2. Ethylamine. यस, करेक्ट. और बोलो बेटा. इथाइलमाइन, मिथाइलमाइन और Butylamine. यस, प्रोपाइलमाइन. अब एक काम करते हैं, इसको अराइल भी कर देते हैं हम लोग, है ना? तो एक एरोमेटिक Benzyl. हाँ, Benzylamine. बेंजाइलमाइन, फिनाइलमाइन, सिर्फ phenylamine. फिनाइलमाइन. और इसी का कॉमन नेम क्या है जो IUPAC ने भी एक्सेप्ट किया है? दैट इज Aniline. एनिलीन. अनिल इन, है ना? तो अनिल इन याद रहेगा, एनिलीन. तो ये भी प्राइमरी अमाइन ग्रुप है, NH2 ग्रुप. ओके, तो फर्स्ट टाइप आ गया क्लासिफिकेशन प्राइमरी अमाइन. सेकेंड टाइप देखते हैं सेकेंडरी अमाइन. सेकेंडरी अमाइन कैसे डिनोट करेंगे बेटा इसको? सेकेंडरी अमाइन 2 डिग्री अमाइन. Degree amine. R2NH. यस, इट इज R2NH. सही है. और कैसे मिलेगा? फिर से वही, when 2 hydrogen atom of ammonia molecule replaced by 2 similar or different alkyl group, we get R2NH. सर रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? हाँ, R2NH. yes, R2NH we get secondary amine. And एग्जाम्पल बोलेंगे अब इसमें मुझे. अभी सिंपल वाले एग्जाम्पल बोलो, मिक्स वाले मैं पूछता हूँ. सिंपल वाले एग्जाम्पल यानी यहाँ एक ही R था तो एक CH3, अब 2 R आ गए तो 2 CH3 लगा दो. Isomethylamine. अरे रामा, आइसोमिथाइल मत बोल रहे. Dimethylamine. डाइमिथाइलमाइन. डाइमिथाइलमाइन नाम लिख लेता हूँ, अभी थोड़ा इम्पोर्टेंट हो गया नाम लिखना. डाइमिथाइलमाइन.
मिथाइल मिथाइल अमाइन. हाँ, नेक्स्ट वाला फिर से सिंपल C2H5NH डाईइथाइलमाइन. हाँ, क्या बोल रहे थे एग्जांपल? इथाइल मिथाइल मिथाइल अमाइन. यस, CH3NH C2H5. C2H. यस, वेरी गुड. नेम्ड एज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल मिथाइल अमाइन. ओके, अब इसमें ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है ना. यहाँ पर दोनों आर आइडेंटिकल है. एक ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि एक बेंजीन रिंग बना देंगे, NH लगा देंगे, NH और ये CH3, ये भी सेकेंडरी होगा. तो सेकेंडरी अमाइन ग्रुप बेटा ये NH से आइडेंटिफाई करना है ना. NH इज सेकेंडरी अमाइन ग्रुप, करेक्ट है, सेकेंडरी अमाइन ग्रुप. तो इसका नाम बोलो ना अभी. मिथाइल बेंजामाइन. ये बेंजामाइन क्या बोल रहा, क्यों ऐसा बोल रहा है? फिनाइल बोलना, जब सब्स्टिट्यूएंट है तो फिनाइल हो जाता. वो सब्स्टिट्यूएंट है ना बेटा, तो वो फिनाइल हो जाता. फंक्शनल ग्रुप लगा है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है. तो जब ये बेंजीन रिंग इस वक्त सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, और सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन का नाम है फिनाइल, है ना. चल बोल, अब नाम बोल. लावण्या, अमोल, इस एग्जाम्पल का नोमेनक्लेचर दो बेटा. सर मिथाइल फिनाइल अमाइन. आया आया. अवंतिका, अवंतिका दाड़े. फिनाइल अमाइन. मिथाइल फिनाइल अमाइन. मिथाइल को भूलना नहीं है. अंश पाटिल, मिथाइल फिनाइल अमाइन. ओके. धनश्री, हीना, नेहा, सेजल, साक्षी ढोरे, श्रावणी दानी, श्रेय परांच पे, श्रेया राउत, श्रुति शर्मा, तन्मय, वैष्णवी, अमोल दामले. और कौन है बेटा? बस अमोल दामले लास्ट में दिया है. ओके, चलिए कमिंग बैक टू, एक बार मैं लिखना चाहता हूँ तो फिर से मुझे बोल के बताएंगे. क्या नाम लिखूँ इसका मैं? मिथाइल फिनाइल अमाइन. वेरी गुड. अब इसमें एक याद रखने वाली बात है सेकेंडरी अमाइन में. देखिए, सेकेंडरी अमाइन यानी NH चाहिए अपने को, और इसकी ये दो वैलेंसी फ्री होती है. नाइट्रोजन की जब दो वैलेंसी अल्काइल या अराइल ग्रुप से रहेगा तो इसे हम बोलेंगे इमीन. हमने इमीन हाइड्रोक्लोराइड वगैरह बनाया था, है ना, और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस किए थे तो हमें अल्डिहाइड कीटोन मिले थे. तो इमीन हाइड्रोक्लोराइड है ना. तो ये इमीन, ये ग्रुप क्या है? सेकेंडरी अमाइन ग्रुप है, बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज what we call imine group. तो एक बार फिर से सभी लोग ध्यान से देखेंगे. अमाइन फंक्शन, सेकेंडरी अमाइन, 2 डिग्री अमाइन R2NH, इसमें नाइट्रोजन दो सब्स्टिट्यूएंट से अटैच है. नाइट्रोजन हाइड्रोजन से नहीं, दो सब्स्टिट्यूएंट से अटैच है. इसीलिए रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? NH with 2 free valency, and this group also called as imine. Imine nahi, it is to be called as imine, and it is nothing but secondary amine. चलिए नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन, तो वो है टर्शियरी अमाइन. अब तो बहुत इजी हो जाएगा सभी के लिए. टर्शियरी अमाइन टू बी डिनोटेड बाय 3 डिग्री अमाइन R3N. और कैसे मिलेगा R3N? when all the 3 hydrogen of ammonia replaced by 3 alkyl or aryl group, we get tertiary amine R3N.
R3N में ये जो नाइट्रोजन है इसकी 3 वैलेंसी है ना, it is having 3 valency nitrogen, and when nitrogen is having these 3 valencies we call it as tertiary nitrogen. अब इसका कोई और दूसरा नाम नहीं है, we simply call it as tertiary nitrogen. Tertiary nitrogen is tertiary amine functional group. तो नाइट्रोजन टर्शियरी. चलिए जी एग्जाम्पल, सिंपल वाले एग्जाम्पल. ट्राई मिथाइल. methylamine. यस, CH3 3 times. ट्राई मिथाइल. Triethylamine. यस, ट्राई इथाइलमाइन सही है. ट्राई फिनाइलमाइन भी बोल सकते हैं आप. 3 बेंजीन रिंग लगा देंगे, ट्राइफिनाइलमाइन हो जाएगा. और एक मिक्स वाला एग्जांपल बोलो. तीनों अलग रहने चाहिए, तीनों सब्स्टिट्यूएंट अलग. Diethylmethylamine. तीनों सब्स्टिट्यूएंट अलग. Da, डा नहीं, tertiary. टर्शियरी नहीं. methylamine. हाँ, propylamine. कौन है डबल? Methyl. हाँ, इथाइल मिथाइल मिथाइल. में मिथाइल प्रोपाइलामाइन. अब आया लाइन पर, है ना. मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल आ गया. और ये नाइट्रोजन है तो ये अमाइन, और ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो वो बेसिक भी हो जाएगा. तो इसका नोमेनक्लेचर अल्फाबेटिकल ऑर्डर से बोलिए जरा. मिथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमाइन. इथाइल, propylamine. मिथाइल, प्रोपाइल, अमाइन. अमाइन. वेरी गुड. तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन on the basis of number of alkyl group bonded to nitrogen. If only one alkyl group directly bonded to nitrogen, RNH2 primary amine. If two alkyl group directly bonded to nitrogen, we call it as secondary amine. It is also called as imine. Imine. It is also called as imine. If all the 3 hydrogen atom of ammonia are replaced by 3 alkyl group, we get R3N. So this is tertiary amine. This nitrogen with 3 substituent is known as a tertiary nitrogen. तो ये हो गया बेटा अमाइंस की डेफिनेशन, अमाइंस का एक क्लासिफिकेशन. सही है. अब एक अमाइंस का क्लासिफिकेशन यहीं पर हम लोग जो देख रहे हैं, स्पेशली इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी. प्राइमरी में तो वो नहीं पॉसिबल होगा, लेकिन वन मोर क्लासिफिकेशन यहाँ लिख लेते हैं. सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस आर further classified as simple, that is symmetrical, or mixed, that is unsymmetrical. तो ये कहाँ पॉसिबल है? सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन. 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में पॉसिबल है सिंपल एंड मिक्स्ड अमाइन. और हमने ऐसे यहाँ पर एग्जांपल देखा भी. जैसे हम फोकस करते हैं R2NH, यहाँ सेंटर में लिखते हैं R2NH. R2NH इसके सिंपल और मिक्स्ड अमाइन, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अमाइन, ये एग्जाम्पल हम बना सकते हैं. एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए भी हमारे पास में. फिर से एक बार सिंपल अमाइन के एग्जाम्पल CH3 twice NH, C2H5 twice NH,
C6H5 2 times NH हो गया। मिक्स में आते हैं CH3NH C2H5 C2H5NH C3H7 बेंजीन रिंग NH C2H5। तो ये बेटा सेकेंडरी अमाइन का हमने दो टाइप में क्लासिफिकेशन कर लिया। एक है सिंपल और सिमेट्रिकल और दूसरा है मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल। करेक्ट है। तो मुझे नाम तो सभी के आपको आते हैं, बट स्टिल आई नीड टू नो द नोमेनक्लेचर फॉर मिक्स्ड अमाइन। मिक्स्ड अमाइन में this is what methyl group, this is ethyl group। IUPAC nomenclature जो nomenclature करना है आपको वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये एग्जांपल का nomenclature क्या लिखेंगे? अल्फाबेटिकल। मिथाइल अमाइन। यस, इथाइल मिथाइल अमाइन। अभी तो आप लोगों के लिए बहुत इजी हो गया ये। सेकंड एग्जांपल बोलो जल्दी। इथाइल प्रोपाइल अमाइन। इथाइल प्रोपाइल अमाइन। इथाइल प्रोपाइल अमाइन। हाँ जी, थर्ड एग्जांपल मिथाइल बोलेंगे। फिनाइल अमाइन। हाँ जी, इथाइल फिनाइल इथाइल फिनाइल अमाइन। इथाइल फिनाइल अमाइन। इथाइल फिनाइल अमाइन। वेरी गुड। और ये तो आते हैं आपको। इसमें से लास्ट वाला बोल दो मुझे। लास्ट वाला C6H5 twice NH। C6H5 twice NH। हेलो, डाइबेंजाइल अमाइन। डाई बोलो। डाइफिनाइल अमाइन। What we call डाइफिनाइल अमाइन। C6H5 twice NH। ये हो गया R2NH। ऐसा ही R3NH, R3N के लिए टर्शियरी अमाइन। टर्शियरी अमाइन इसका सिंपल एंड मिक्स दो कैटेगरी हम कर सकते हैं। सिंपल एंड मिक्स्ड। मिक्स ही लिख दिया यहाँ पर सिंपल के बदले। सिंपल एंड मिक्स्ड। चलो जी, टर्शियरी 3 डिग्री अमाइन। प्लेस एग्जांपल। सिंपल के तो हम लिख देंगे C2H5 3 times N और ये C6H5 3 times N। मिक्स के सर हाँ 10 minutes। ओके। CH3 2 times N C2H5। C2H5 2 times N C3H7। चलिए, मिक्स टर्शियरी अमाइन के दो एग्जांपल है, नोमेनक्लेचर बोलेंगे। बाकी स्टूडेंट भी बोलेंगे। हाँ, बाकी को बैठने का नहीं है सिर्फ। अनमोल, टर्शियरी मिथाइल अमाइन। अनिरुद्ध, अनमोल, लावण्या, श्रेय, सागर। हाँ चलो, आप ही बोलो क्या नाम आएगा। कौन? डाइमिथाइल अमाइन। डाइमिथाइल अमाइन। अबे फिर से बोल। डाइमिथाइल इथाइल अमाइन। इथाइल डाइमिथाइल अमाइन। क्या बोल रहे हैं बेटा? ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा। ये जो डाई है ये तो नंबर है। दिस डाई रिप्रेजेंट नंबर। दिस डजंट रिप्रेजेंट अल्काइल ग्रुप। दिस डाई रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। डाई इथाइल प्रोपाइल अमाइन। हाँ, इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? डाई इथाइल। प्रोपाइल अमाइन। डाई इथाइल प्रोपाइल अमाइन। डाई इथाइल प्रोपाइल अमाइन। सही है। तो ये हो गया टर्शियरी अमाइन। तो याद रहेगा आपको अमाइंस का। अब इसमें नोमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं हम लोग।
तो नोमेनक्लेचर कॉमन नेम तो हो गया है अपना, है ना। कॉमन नेम सिस्टम तो बहुत इजी है। आप लोगों ने नोट्स में देखा होगा नोमेनक्लेचर। तो कॉमन नेम सिस्टम, what we follow, we write common name here। तो प्राइमरी अमाइन में कॉमन नेम क्या रहेगा? अल्काइल ग्रुप, तो C3H7NH2 प्राइमरी अमाइन। तो ये प्रोपाइल अमाइन, हाँ जी, ये इस तरह से रहेगा CH3CH CH3NH2। इसका नोमेनक्लेचर बोलिए मुझे, कॉमन नेम CH3CH। आइसोप्रोपाइल अमाइन। वेरी गुड, कॉमन नेम इज आइसोप्रोपाइल अमाइन। और जो पहले वाला मैंने प्रोपाइल अमाइन लिखा है, इसका मीनिंग क्या है कि द चेन इज अ नॉर्मल चेन, CH3 CH2 CH2 NH2। आर यू गेटिंग इट? ये है C3H7। और आइसोप्रोपाइल अमाइन इस तरह से लिखेंगे। तो दिस इज अबाउट प्राइमरी अमाइन, कॉमन नेम सिस्टम। सेकेंडरी अमाइन में कॉमन नेम का क्या होता है? इफ सिमिलर टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप देन प्रीफिक्स डाई इज यूज्ड। सिंपल और सिमेट्रिकल अमाइंस में क्या होगा? अगर सेकेंडरी अमाइन है तो प्रीफिक्स डाई लगाएंगे, टर्शियरी अमाइन रहा तो प्रीफिक्स ट्राई लगाएंगे। तो यहाँ जैसे ये ट्राइमिथाइल अमाइन, ट्राइइथाइल अमाइन, सही है। तो कॉमन नेम फर्स्ट रूल क्या है? द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप फॉलोड बाय द वर्ड अमाइन। तो रूल नंबर 1, कॉमन नेम सिस्टम, CNS, common name system. How to write the name of an alkyl group? It is a two-word name. First word is the name of alkyl group followed by the word amine. Hence, the name is to be called as alkanamine. और प्राइमरी अमाइन रहेगा तो मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, प्रोपाइल अमाइन, आइसोप्रोपाइल अमाइन, ब्यूटाइल अमाइन, लाइक दैट। सिमेट्रिकल और सिंपल अमाइन में प्रीफिक्स डाई सेकेंडरी के लिए, ट्राई टर्शियरी के लिए। मिक्स अमाइन रहेगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना, वो सेकेंडरी हो या टर्शियरी, मिक्स अमाइन में दे शुड बी अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो आज के लिए इतना ही। अभी कितना, 2-3 मिनट है और अराइल अमाइन। 5 मिनट। वाह 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 वाह। ओके, सो एक और पॉइंट अभी मैंने आपको पढ़ा दिया। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 पे आते हैं। रूल नंबर 4 क्या बोलता है कि रूल नंबर 4, इफ अराइल ग्रुप इज बॉन्डेड टू अमाइनो ग्रुप, we call it as aryl amine as a common name, but this is to be called as aniline or phenyl amine, है ना। तो ये aniline IUPAC में भी चलेगा, कॉमन नेम में भी चलेगा। ओके, और बाकी जो कंपाउंड बनेंगे दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ aniline, derivatives of aniline. If further compounds are there, जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में देखा था कि बेंजोइक एसिड, एरोमेटिक में क्या किया था हमने, बेंजोइक एसिड वाज द बेसिक कंपाउंड और फिर इसके डेरिवेटिव्स बने थे बेंजोइक एसिड के। बेंजोइक एसिड वो जैसे क्लोरोबेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजोइक एसिड, है ना, मिथाइल बेंजोइक एसिड, वैसे ही एनिलीन के एनिलीन इज द पेरेंट कंपाउंड एंड ऑल अदर आर कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन। जैसे ये कंपाउंड बेटा में लिखा यहाँ पर, ये एनिलीन बना दिया, इसकी पैरा पोजीशन पे Br आ गया, है ना। पैरा पोजीशन पे Br लगा दिया
तो नाम क्या हो जाएगा इसका, सॉरी ऑर्थो पोजीशन पे बी आर लगा दिया तो नोमेनक्लेचर क्या होगा, ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन, व्हाट वी कॉल ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन. सो इट इज द डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन. अगर यहाँ पर एक और बी आर आ गया तो क्या लिखेंगे हम, डाई ब्रोमो एनिलीन. तब ऑर्थो पैरा चला जाएगा, डाई ऑर्थो डाई ब्रोमो एनिलीन, what we say ortho dibromo aniline. So this is what the aromatic amine according to primary according to common name system. Aniline is the parent compound, all other are considered as derivative of aniline. Okay, चलिए कल important पढ़ेंगे IUPAC nomenclature. Okay, okay, then see you tomorrow. Thank you very much. सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए. हाँ बेटा.